Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. First of all, sorry for not being there for a very long time. And now that I'm back, I'll be regular with videos. And a big shout out to Aditya for doing the videos for the past 2 weeks, as well as for predicting exactly how the market is going to behave. And I have seen like the hit rate is more than 80-85%. So a big shout out for that as well. Now let's discuss Bank Nifty, Nifty, as well as Fin Nifty, because tomorrow we have Fin Nifty's expiry. So on the monthly time frame, what we can clearly see that Bank Nifty needs to break at least 51,750 for it to touch its previous ATH. And on the lower side, what we can clearly see that there is a lot of buyers presence. Every time Bank Nifty tries to touch down, buyers try to lift it up, and so far Bank Nifty was much weaker, and I will show you why. But today is the first day when I saw that Bank Nifty is taking the lead. We'll discuss that also today. Let's quickly go to weekly time frame. On the weekly time frame, what we can clearly see that Bank Nifty took the support of somewhere around 49,600-650 zones, and it tried to go up, but again it took a resistance. Now this is the trend line that Bank Nifty is following on the weekly time frame, and the current week I don't even have to discuss because this is just day one is done, which is Monday, and weekly candle it's very important to look at the weekly candle on a Friday. Looking at the past week, it was looking more like, kind of a downside. But if you guys remember on the daily time frame, yesterday I had mentioned in my thread also that Bank Nifty has got an immediate support somewhere around 5280 to 5350. And if you'll go and check today's low was 5369. So even before touching that 350 zones, it actually reversed because the supports was almost around this level. Plus there is a confluence. See, this one was the support which I had written yesterday here. 5280 to 5350 is the immediate support on daily. Need to see how it reacts there. And along with that, if you see, there is one more confluence, which is this particular trend line. So here, if you see, this was the rejection, this was the rejection, this was the rejection. So 3 times it was rejected already. Then there is a breakout and it tries to sustain above this particular trend line. And now when it came back on the downside, this particular resistance is now acting as a support on trend line. So for those of you who haven't watched my trend line video, I will definitely put it at the end screen. Please go and watch that video to understand how trend line also works like a support and resistance. So today, if you see, there is a confluence. There was a confluence. One is that this particular trend line support. The other one is that there was an immediate support around 5280 to 5350. Now the important thing to look at it, this particular today's, yesterday's candle was the Friday's candle was a very big red candle. So it was looking as if, everyone was basically trying to sell. Option buyers would have also definitely gone home with the put buying. But look at it hardly gave money for option buyers. For option sellers, still, the opening was really benefiting. But if you would have stayed throughout the day, then it would have killed you. So the positions are like, if it is an STBT, then you have to exit in the morning itself. So अभी यहाँ पर देखो, like what we can clearly see, यहाँ पर हम लोगों ने ये rejection लिया था ट्रेंड लाइन का, और जैसे ही यहाँ पर आया तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लिया है इसने, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो अब सपोर्ट होगा, और यहाँ पर हमने इमीडिएट सपोर्ट भी है. तो ये दोनों कॉन्फ्लुएंस की वजह से वी वर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल, और ये बहुत ही ज्यादा शार्प रिवर्सल आया आज ही. एंड बैंक निफ्टी एक्चुअली मैनेज टू क्लोज अबाउट 51,000, which actually shows the power of the bulls. क्यों अभी 51,000? Why it is important? I'll tell you. Look at this particular level. This is 22nd August. So somewhere around 22nd August, or to be very precise, about 51,000. This was the level. Yeah. 26th August. Say if you see, every single day we were closing above 51,000, and this was the only day, which was the Friday, 6 September, when we closed below 51,000. So आज वापस वो reclaim कर लिया है. So which tells me that the bulls are still in power. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये कोई 50% कैंडल का क्लोजिंग नहीं है. ये अगर आप देखोगे, आई जस्ट ड्रॉ दिस फिबो, अगर आप इसके लो से देखोगे तो इसने कितना क्लेम किया, मोर देन 61.8%. मतलब ऑलमोस्ट इसने यहाँ तक तो टच किया था, मतलब 60 to 70% इसने रिकवर भी कर लिया है आज, वॉट एवर इट फेल ऑन फ्राइडे. तो यहाँ पर अभी हमें दो चीजें मिल रही है. एक तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 51,300 51,400 के आसपास, और यहाँ पर अभी हमें एक अच्छा सपोर्ट मिला है, विच इज 5300. So now let's go on the 15-minute time frame. So on the 15-minute time frame, this was the support that Bank Nifty was respecting in the last week. If you guys remember, this was a 51,260, right? 51,250, 51,260. Roughly, we will take 51,300. Okay. So 51,300 respected, 51,300 respected, 51,300 respected, and then it gave a mega breakdown on Friday. So now this erstwhile support should act as a resistance. So अगर कल यहाँ पर आता है market, so then I'm expecting यहाँ से एक बार तो sell off आना चाहिए. अब ये sell off ऐसा नहीं आएगा कि ऐसे के ऐसा आएगा, नहीं, I'm not expecting that. एटलीस्ट यहाँ से आके यहाँ पर कुछ वेट करना चाहिए, बिकॉज रिमेंबर
बहुत बड़े मूव्स हो चुके हैं दोनों साइड में, लाइक बोथ ऑन द सेल साइड एज वेल एज ऑन द बाय साइड, बिग मूव्स हो चुका है। इसका मतलब व्हाई देयर आर बिग मूव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सी September 18th इज व्हेन यूएस में जो फेड है वो डिसाइड करने वाली है टू कट डाउन ऑन द रेट्स, एंड मे बी आई गेस आफ्टर 2 years we are actually seeing this particular thing of cutting off rates, because every time क्या हो रहा था, वहां का इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो इंटरेस्ट रेट्स वाज गोइंग अप, बट उसके लिए जो पैरामीटर है विच इज द इन्फ्लेशन डेटा दैट दे टेक इनटू कंसिडरेशन, उसका रिलीज है ऑन 14th विच इज ऑन अ वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इवनिंग को इन्फ्लेशन डेटा आने वाली है, उसके ऊपर ऑब्वियसली देन द फेड चेयरमैन पावेल विल डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन, राइट। सो ये 2 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो बहुत उतार चढ़ाव यूएस मार्केट्स में हो रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वी आर आल्सो अफेक्ट। एंड नाउ व्हाट हैड हैपेंड, सुबह वी हैड सीन दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि देयर वाज दिस आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी थी इसमें। उसके साथ साथ आई एम जस्ट टेकिंग दैट ऑफ, बट अगर आप उसको भी अवॉइड करते हो तो भी यहाँ पर क्लियर दिखेगा आपको कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन दिख रहा था यहाँ पर। 5 मिनट्स में आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको ये, और उसका इसने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं आई वेंट लॉन्ग हियर समवेयर, बट देन ये वॉलेटिलिटी जस्ट ये जो वॉलेटिलिटी हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आज वॉलेटाइल रहेगा एंड यू नो मे बी कल क्लीन मूव देगा, तो देन आई बुक्ड इट आउट। मतलब यहाँ पर फिर मैंने ज्यादा प्ले नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी आई हैड गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम द एसटीबीटी जो हम लोग ने कैरी किया था, तो उसकी वजह से मेरे पास ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स थे एट द ओपनिंग, सो आई डिडंट वांटेड टू गिव बैक दैट, सो दैट्स द रीजन आई एग्जिटेड। फिर और उसके बाद वो बहुत अच्छा चला, आई गेस अराउंड ये 115-130 के बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव के साथ आया है। तो नाउ कल के लिए क्या, कल के लिए व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, सी एज आई सेड ये 51-300 आई तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। नाउ ये 300 की जगह पर 300-350 भी हो सकती है, या एट द मोस्ट 400 तक हो सकती है। तो जिस हिसाब से क्लोजिंग है ऐसा लग रहा है कि गैप अप होने के चांसेस है, तो लेट्स से कल यहाँ पर से गैप अप, अगर बड़ी गैप अप से यहाँ पर से ही खुल रहा है अराउंड 51-300 के आसपास, तब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ से कोई सेलिंग आ रही है क्या। मतलब यू हैव टू बेसिकली वेट फॉर दैट कैंडल, और यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको यहाँ पर सेलिंग या रेड कैंडल आ रहा है और उसके नीचे जैसे ही जाएगा देन दैट इज व्हेन यू कैन स्टार्ट सेलिंग कॉल्स, ठीक है। और अभी इसमें इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास है 5800 के आसपास, अच्छी सपोर्ट है 5500 के आसपास। और यहाँ पर मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बार पहले सपोर्ट ले चुका था और ये फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया इस सपोर्ट को, तो ये जब भी आएगा उस लेवल पे तो इट शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस कल एटलीस्ट। ये क्योंकि ये बहुत देखो यहाँ पर अभी काफी बड़े बड़े मूव्स हुए हैं, ये इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है उसके बाद इतना बड़ा अप मूव हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कंसोलिडेट अ बिट। अब अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले 2 आई गेस 1.5 से 2 हफ्ते हम लोग सब लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मार्केट साइडवेज ही है, बैंक निफ्टी ऊपर जा ही नहीं रहा है या नीचे भी नहीं जा रहा है। और अगर आप देखोगे पूरा वो जो कंप्लेन था वो लास्ट के 2 हफ्तों का, वो उसने अभी मतलब बड़े बड़े मूव्स दोनों साइड में दिया है। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए ना ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो वी ऑलवेज वेट फॉर दैट फॉलो थ्रू कि आज रेड कैंडल के बाद फॉलो थ्रू आएगा, बट वैसे आजकल होता नहीं है। मे बी बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट वी आर इन, जिसकी वजह से फटाक से रिवर्सल्स आते रहते हैं। तो फॉर टुमारो सी अगेन आई जस्ट हैपन टू सी दिस पर्टिकुलर यूएस फ्यूचर्स, तो अभी 400 पॉइंट ऊपर है। देखते हैं हम ये आज मार्केट जब भी शाम को खुलेगी यूएस की तब क्या होता है। So now for tomorrow, as I said, I am considering this as a very good support, and I am considering 300 to 400 should act as a resistance, and I am expecting market to remain within this particular range for tomorrow. Now for some reason which I don't think so, like for some reason if 51,400 is taken out tomorrow itself, देन ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं रह सकते, फिर मार्केट फिर से यहाँ पर आके रुक सकता है एंड देन मे बी यू नो वेडनेसडे और मे बी थर्सडे को, स्पेशली ऑन थर्सडे इज व्हेन आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव, बिकॉज वेडनेसडे को यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है देन। तो बट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग, बैंक निफ्टी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, 2 more in stocks that I want to discuss. Let's go on daily. ये देखिएगा ICICI बैंक, ये बहुत ही पास में है। किसके पास में है? इसके प्रीवियस ATH के पास में। अगर आपको मैं दिखा दूं, इट इज जस्ट रफली 1.7% अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और इसने जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये कल के लिए वापस अप मूव के लिए रेडी हो रही है। और HDFC बैंक अगेन यहाँ पर मेरे को ये बताना है कि देखिएगा ये बहुत ही साइडवेज रहा है, बहुत ज्यादा साइडवेज रहा है, और यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है, जैसे ही हमको डेली का क्लोजिंग आ जाता है अबाउ 1655, तो हम लोग ये वाली टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
See, all these things I am not talking you, or I am not sharing this from the perspective of taking trades. I am sharing this only from the perspective of educational purpose only. This is only shared from the standpoint of educational purpose only. तो अगर आप लोगों को ट्रेड्स लेना है, जो भी स्टॉक्स खरीदना है, जो भी करना है, तो यू प्लीज डू डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर. बट आई एम सेइंग कि सी, HDFC बैंक हमें पता है कि इट कंट्रीब्यूट्स 1/3 टू बैंक निफ्टी एंड द सेकंड हैवी वेट जो है बैंक निफ्टी में वो ICICI बैंक है. तो अगर ये दोनों चलेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए इट विल बी वेरी इजी टू मूव अप. ऑल्सो आज अगर आप देखोगे, लुक एट दिस पर्टिकुलर, बैंक निफ्टी वॉज अप बाय 1.07% और निफ्टी अगर आप देखोगे सिर्फ 0.3% है. इसका मतलब बैंक निफ्टी वॉज ड्राइविंग निफ्टी. तो बैंक निफ्टी हैज डेफिनेटली टेकन द ड्राइवर सीट नाउ. तो अब देखते हैं यहाँ पर ये हमें ब्रेकआउट मिलता है कैसे होता है, बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट मिलता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग ये लेवल तक तो एटलीस्ट, ठीक है. तो बट उसके लिए अपने को वी नीड अ क्लीन क्लोजिंग अबाउ 1655 ऑन डेली. लेट्स सी उसके बाद क्या होता है. तो इन बैंक निफ्टी एज आई सेड वी आर वेरी क्लियर व्हाट नीड्स टू, हाँ अर्लियर व्हाई बैंक निफ्टी वाज वीकर देन निफ्टी. ओके, दैट इज व्हाट आई वांट टू कवर. तो इफ यू रिमेंबर, ये जब भी W हुआ उसके बाद बैंक निफ्टी मेड अ हाई ओनली टिल 51,800, ठीक है. इसने नया हाई नहीं मारा था इसके बाद. अब चलते हम निफ्टी की तरफ. निफ्टी में अगर आप देखोगे ये जो W का ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखोगे निफ्टी ने नया हाई मारा था. निफ्टी ने इट वेंट ऑल द वे अप टिल 25,300 के आसपास, ठीक है. और अभी ये यहाँ पर है. अब हम लोग निफ्टी में देखते हैं कि क्या करना है. तो अगर निफ्टी में आप देखोगे जितनी बैंक निफ्टी में क्लीन जो अपमूव आई है उतनी स्ट्रॉन्ग अपमूव अब तक आई नहीं है. Maybe because the Nifty instruments are not that supporting as of yet, like maybe Reliance, IT Pack, they are yet to take the lead. If you see, it was the banking pack, especially ICICI Bank, जिसने drive किया है बैंक निफ्टी की अपमूव. तो coming to Nifty, तो जो बैंक निफ्टी में ये inverted head and shoulders हो चुका है वो निफ्टी में बन चुका है. तो what we need, we basically need a breakout. ये हब के ऊपर एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल चाहिए हमको ग्रीन कलर की, जिसके बाद हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी में. एंड उसमें भी फिर ये होगा कि हमारा फर्स्ट टारगेट 25,080 होगा और सेकंड टारगेट 25,200 के आसपास होगा. अब निफ्टी में फॉर टुमारो व्हाट नीड्स टू बी डन. सो ओके, इन केस ऑफ निफ्टी यहाँ पर मैंने लिखा था, कल ही लिखा था, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर लेवल इज 24,960 एंड येस्टरडे आई हैड रिटन द S1 वुड बी 24,760 to 24,780 एंड टुडे इट रिवर्स्ड फ्रॉम 24,754, ठीक है. ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है? बिकॉज ये अभी तक लोअर हाई लोअर लो बन रहा था, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तब हायर हाई हायर लो की स्ट्रक्चर होगा. तो वी नीड अ क्लीन क्लोजिंग अबाउट दिस एंड फिर मार्केट ये लेवल पे चले जाना चाहिए. बेसिकली वी वांट अ क्लोजिंग अबाउट 24,960. अगर if it becomes very difficult for you to remember, at least consider 25,000 which is round number. तो उसके ऊपर तो आ जाने तो फिर देखेंगे उसको, राइट. तो अभी यहाँ पर वापस ये जो है ये रिवर्सल पैटर्न है, ये मतलब बुलिश रिवर्सल पैटर्न है ये. तो नाउ लेट्स सी इफ टुमारो वी गेट अ क्लीन क्लोजिंग यहाँ पर एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट द फर्स्ट टारगेट हियर. और अगर इसको भी ब्रेक कर पाता है देन दिस इज द फाइनल टारगेट ऑफ 25,200. नाउ लेट्स डिस्कस फिन निफ्टी बिकॉज कल एक्सपायरी फिन निफ्टी के है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन फिन निफ्टी what I want to share is that again Fin Nifty is just very near to its previous ATH. It is roughly 1.32%, which clearly tells me that it is not very far. Unlike Bank Nifty, it is very near to its previous ATH. Now let's go on and here also just like Bank Nifty, what Fin Nifty did, it covered at least 70% of the fall that had happened on Friday. Okay, तो 15 minutes में जाके देखते हैं हम. 15 मिनट में यहाँ पर एक डिफरेंस है W पैटर्न बन के और फिर उसने ब्रेकआउट देके अप मूव दिया था. अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे थे तो आपको यहाँ पर ही मिल जाता वो अप मूव, ठीक है. अगर आप 5 मिनट्स में वगैरह देखते तो आपको मतलब जल्दी कैप्चर करने मिलता. तो नाउ फॉर अस फिन निफ्टी दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट, दिस इज द मेजर सपोर्ट एंड दिस इज द R1 एंड R2 और R3 जो है वो अपना जो प्रीवियस ATH है समवेयर अराउंड 24,030 से 24,050. कल के लिए फिन निफ्टी में क्या प्लान करना है? अब फिन निफ्टी में अगर मान लो अगर फ्लैट हम ओपन होते हैं तो हम स्ट्रैंगल्स I'm referring from the perspective of option sellers. Option sellers strangles के साथ रह सकते हैं जहां पर आप ये लेवल और ये लेवल के बीच में प्ले कर सकते हो, ठीक है. और अगर ये लेवल या ये लेवल टूटता है तभी आपको मतलब फिर भी आपको मतलब ऐसे कोई वन साइडेड जाने की जरूरत नहीं दिख रही है बिकॉज फिर ये वाली सपोर्ट्स आ जाती है पिक्चर में. जस्ट दैट यू विल हैव टू मूव अ बिट ऑन द पुट साइड, दैट्स ऑल. बट एंड ब्रिंग योर कॉल्स मतलब लोअर, उतना ही मुझे लग रहा है. बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्ट्रैंगल्स को कल रिवॉर्ड करेगा. ऑफ कोर्स नाउ द प्रॉब्लम इज ऑफ स्पाइक्स, क्योंकि अभी ये रेंज देखिएगा 23,600 से 23,800 840 तक है और प्रीमियम्स बहुत ही कम हो चुकी है. तो फिर वो थोड़े भी मूवमेंट में आपको बड़े स्पाइक्स ही दिखेंगे. बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल टू बी हेल्ड ऑन टिल टुमारो. अगर ये नहीं भी होता है R1 तो एटलीस्ट ये यहाँ तक तो मतलब मार्केट जाके रुकनी चाहिए. ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम फिन निफ्टी. एंड अगर आपको अगर लॉन्ग लाइक फॉर ऑप्शन बायर्स इफ यू वांट टू गो
एंड प्ले ऑन द लॉन्गर साइड, देन यहाँ पर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी लग रही है, बिकॉज बैंक निफ्टी आज काफी अच्छे से मूव हो चुकी है, बट निफ्टी अभी भी वेट कर रही है। तो निफ्टी में अगर ऐसा कोई ग्रीन कैंडल अच्छे से आती है तब आप अप मूव के लिए प्ले कर सकते हो। नीचे का क्लीन मूव अभी भी नहीं है, बिकॉज ये फिर से चॉपीनेस होगा, बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट्स वगैरह है। तो अगर यहाँ पर कोई अच्छा क्लीन क्लोजिंग आता है, दैट इज व्हेन यू कैन बेसिकली गो लॉन्ग इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में सिंपल हम ये प्ले करने वाले हैं कि अगर गैप अप से खुलता है और हमें कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप इमीडिएटली इन द मॉर्निंग, देखिए कोई भी ट्रेड आपको होल्ड करके नहीं रखना है, आप छोटे इस टारगेट्स के लिए आप वापस उसको प्ले कर सकते हो कि बुक कर सकते हो। यहाँ पर ओपन हो गया 51,300 या 51,400, एंड इफ देयर इज अ रेड कैंडल देन यू कैन शॉर्ट एटलीस्ट टिल दिस लेवल ऑफ 51,000 के आसपास। एंड बट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है एंड देन यहाँ पर भी घूम सकता है, इज व्हाट माई एक्सपेक्टेशन इज, बिकॉज 5800 लुक्स टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर नाउ। कल देखते हैं, बट येस बैंक निफ्टी हैज टेकन द लीडरशिप, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। आज की जो अप मूव आई है इतनी बड़ी 540 पॉइंट्स की जो रिकवरी हुई है कल के परसों के फॉल से, तो यहाँ से इट्स वेरी क्लियर दैट बैंक निफ्टी हैज डेफिनेटली टेकन सम सॉर्ट ऑफ अ लीडरशिप एंड लेट्स सी दिस टाइम क्या करने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज अब हम वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू इवेंटफुल वीक दिस पर्टिकुलर वीक विद इन्फ्लेशन डेटा कमिंग ऑन वेडनेसडे एंड September 18th इज व्हेन यू नो फेड की भी बड़ी वाली पॉलिसी आने वाली है जहां पर रेट कट्स और उसके बारे में बात होने वाली है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। सो दैट्स द रीजन वी आर सीइंग सो मच ऑफ वोलेटिलिटी in this particular market. Hope you have liked this particular video. अगर आपको पसंद आया हो प्लीज टू हिट द लाइक बटन। और हमने जो भी शेयर किया है ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम कोई स्टॉक या कोई कुछ रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज गो एंड चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एक्टिंग ऑन टू एनीथिंग। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।